I think most of the people are available now. So let us continue. Basically, what we are doing over here and what we are focusing over here. Okay, so basically, we are going to learn, as everybody knows, this batch is basically created and will be served for Power BI services, understanding those details and understanding how Power BI can make an advantageous part. Okay, so now for people who are, let's say, very new, okay, let me give you a simple, let's say, okay, just give me, just provide you how this Power BI works in industry wise. Okay, because you must be thinking over there and how we are going to evolve and how we are going to understand that in industry that particular tool is being used and in which way, isn't it? So let me just provide you with the details, and that would be, let me color it with the different. Okay, let me showcase you over here. Okay. Now, what exactly Power BI is? Okay, for example, let's say there is sources, different type of sources are there. Basically, in um, real life scenario basis, you must have already heard that there are two type of sources we are always talking about, and that source is first primary, and second is secondary source. Now, any primary source which has been, let's say, created by you or where you were not, or any secondary source from where or by any means the industry or that particular, let's say, company, industry that client has provided with you, okay, will be considered as your data. It will be stored in somewhere, isn't it? It will be surely be stored in somewhere, let's say database or somewhere in this. It might be like this one, database. It can be in flat file format also in this way. Okay. Now, if it is in a database, it may be of SQL format and .SQL format. Okay, it is like this. Or if it's in flat format, it would be, let's say, in Excel SX format, or it could be of a CSV format. Obviously, we already know that. In any ways, both of this, in any ways, if you check over those both data methodology, let's say data structure. Okay, if you talk about structure of this data, structure of a data, it is obviously going to be a tabular format. Tabular format means it will have columns and rows, isn't it? It would be presented in this way. In SQL also, and in flat file storage format also, or anywhere you go, it will always be somewhat in structure format also. If you take an example of any CRM format, it will be in structure format only. If you take any details which are, even if you take, let's say, .html format, okay, when you convert it into, let's say, whatever device or whatever input, let's say, to get a form which need to be filled by a customer, it could be Google form, it could be any form, even if it's in semi-structured, when you save it in some, let's say, particular file or somewhere, it is always converted into structured data, isn't it? Row or table format mein hota hai. Once it is done, further what is to be done? Okay, once it is done, further, the next steps over here is to extract. To extract this type of a format, this type of files which are available, okay, this type of file which is available, it need to extract in one tool, in one of a tool, which will help you to analyze the data. Because see, even if this data, even if your format is available in this format, let's say tabular format mein yahan pe hai, which is consisting of, let's say, x1, x2, x3, xn, okay, up to n number of columns could be there, and n number of rows could be there. Even if this data is present in this tabular format, we cannot see or we cannot extract, because see, it's not about only 100 records. Okay, it's not about only 100 records. It may get up to 10 times of this value. It may get up to 50 times of this value. It may also get up to 100 times of this value.
isn't it? It can be there. So what happens is that this record, if it's small, we can visualize and we can see over here by itself. But if the data is, let's say, belonging to a very large number of records and also with very large number of columns, the data and the intensity, the complexity of the data with its insights and information get complex. It is complex. To get these details, to extract that information, we need some kind of, let's say, information basis. And let's say to get this extract or to extract this information, we need to get information from each column or from multiple columns. In this way, you must understand that univariate, bivariate, and multivariate. Okay, now what this means? Now, as I said, when you have x1, x2, x3, xn, that will be a number of columns, isn't it? In that sense, whenever you are going to analyze or whenever you're going to do analysis on single column, whenever you're going to work on single column, now you must be saying, huh, is it possible? How can we do analysis on single column? Let me give an example for that. Whenever you're going to work on single column, whenever you are going to analyze only one column, it is called univariate. Okay, it is called univariate. Now, how it has been done? For example, let's say age column. Whenever we are doing and whenever we are analyzing age column, age may vary from, let's say, 1 year of its birth to, let's say, 100 year. Again, who knows? Whom one may cross 110, 105 or something, but it's very rare. So I will not be going over there. Even 80, crossing that 80 age is it's let's say an extreme value. Okay, so 100 is most value that is available. So let's say 1 to 100, and within that there could be n number of numbers, and it can be duplicate. As a duplicate, it can be repetitively available. Okay, so what happens is that if we need to analysis only this age column can be, let's say, analyzed using different summarizing method, let's say summarizing factors, or let's say summarizing functions. For example, sum. Now, doing sum of this value, adding all the values and doing sum will not give me that much of information, but one method is there. Again, count. Count will surely give me how many number of data do I have. Obviously, that is useful. Again, unique count, unique value count. Okay, unique value count means how many unique numbers are there. Useful. Average age, that is useful. Median age, that is useful. Now see over here, whatever count I am taking over here is only based on one column only. Now what is use of this? I can categorize this data in different means. Okay, means I can say, let's say infants, let's say teenage, adult, senior citizens, and so on. In this way, what I can do, I can categorize n number of categories from this data, and I can focus. If I have to sell, let's say, a product, I can focus which particular category or which particular segment is buying my product more and more, isn't it? So it is only one column where I'm focusing. I haven't used any other columns, though I can use one column to analyze or to get the information from that particular column. That method is called univariate, when only one column is involved in your analysis. Is it the only option that you have? No, it's not like that. Again, if there is something missing in this data, for example, missing values, obviously, while imputation or doing some, let's say, fulfilling that missing value, we always consider one column. For example, max value, we will calculate minimum value from one column only. So whenever you are analyzing one column, remember that is called univariate analysis. It is called univariate. If you are comparing, let's say, age and salary, when there are two columns involved simultaneously side by side, or let's say if you're using two columns to analysis at once, so it will call bivariate. Again, if at once you are analyzing more than two, it is called as multivariate. Okay, for example, scatter plot. That means in that you will have x-axis, you'll have y-axis,
And in this way, what you can put like this. Let's say there could be different colors that you might approach like this. You'll be having like this. And let's say the other data color I'll choose would be, just a second. So I'll be using, okay, for now I'll use blue color. Let's put it over here. Now what exactly we are going to extract this details over here. So if you can see over here, the pink color, what you can see is, let's say if I draw a line, it would be like this. Okay, I'll draw in that same color. It is moving in this trend. And if you look over blue color, it is moving in this trend, in this direction, isn't it? So over here, what we are doing, we are comparing that if there's an X input with respect to Y input, we can see that if you're considering blue line, or let's say blue data, it says it's an inverse relation. If you're looking over pink, it is saying it is direct proportional. But if I add Z, if I add Z category over here, let's say if I add Z, call let's say Z axis like this, it would be in this direction, Z. What would happen? You will add one more axis where this Z will work as its third. Let's say if you can here. Now when I add Z, what I'm doing over here, I am finding out X and Y relationship based on what? Based on Z. Earlier, how it was? Hello? X is Y. नहीं मैं अभी मैच इसमें हूँ सेशन बाद में 11 Okay. सो ओवर हियर अभी हम क्या कर रहे हैं x और y के बीच में हम क्या कर रहे हैं अभी तक हमने क्या कहता है सिर्फ रिलेशनशिप वी आर जस्ट फाइंडिंग आउट हाउ रिलेशनशिप इज बिटवीन x एंड y बट नाउ x एंड y रिलेशनशिप के बीच में क्या है बेस्ड ऑन z ओके ये हम फाइंड आउट करें जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो यहाँ पे एज और सैलरी ये क्या है आपका x और y बट जब एक पार्ट वहां पे आता है रोल वाइज अब रोल क्या है बेस्ड ऑन रोल आप कौन से रोल के लिए वर्क कर रहे हैं फिर कौन से आप लेट्स से डिपार्टमेंट में हो कौन से पर्टिकुलर एक डोमेन में हो उसके हिसाब से आपका सैलरी ऑब्वियसली चेंज होता है तो क्या होता है यहाँ पे रोल वाइज आपकी यहाँ पे कंपैरिजन होती है दैट इज व्हाट जेड विल कमिंग पार्ट if you're adding more and more this multivariate will go on complexity it will increase the complexity now in this way remember that in industry or in anywhere we will be working on univariate also we'll be working on bivariate also we'll be working on multivariate also this is how it pictures now if line chart is there there would be column chart like this there would be let's say I'll just consider as a pie chart over here which will have like this some partition over there okay and then who knows we may have a funnel chart also like this basically what I'm telling there could be different charts to visualize okay like this now in this way we are going to analyze the data in univariate manner bivariate manner multivariate manner understanding that we need to extract information from this data particular data to understand what is this data showing to me now what type of different analysis are being done analysis like customer satisfaction based on what based on let's say any product how much they are satisfied and this would be given by ratings review feedback and number of features would be there where you'll be understanding how customer is satisfied okay now financial aspect if in financial and specifically if you're talking about banking roles banking में basically क्या है loan defaulter or not if you have taken loan defaulter or no defaulter okay like that again if you are let's say if you are having let's say services based
सर्विस इंडस्ट्री में भी स्पेसिफिकली अगर आप बोलोगे कि चलो इफ आई हैविंग लेट्स से समव्हाट लेट्स से टैक्सी सर्विस में क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ व्हीकल, यूटिलाइजेशन ऑफ व्हीकल। ओके, जहां पे क्या है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए सबसे बेस्ट रूट क्या रहेगा, सबसे बेस्ट अमाउंट क्या रहेगा, उसके बाद में उस पॉइंट से, ओके, इफ दैट पर्सन इज नियर वन, ओके, अगर एक कस्टमर या फिर उनका क्लाइंट अगर पास में हो जाता है, नया बुकिंग आता है, तो विच should I use this particular vehicle only or should I wait for let's say the other vehicle which is nearby? Okay, तो कौन सा टाइम बेटर रहेगा, कौन सा मेथोडोलॉजी रहेगा, ओके, दैट अंडरस्टैंडिंग, डेप्थ नॉलेज ऑफ दैट इज रिक्वायर्ड, सर्विसेज में आएगा। मेडिकल में देखोगे, मेडिकल या फिर फार्मेसी में, अगेन मेडिकल में एक छोटा सा टर्म देखोगे तो वहां पे आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये सभी जगह होता है, ऐसे नहीं कि पे, बट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग व्हाट मेडिसिन आर रिक्वायर्ड ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस, क्या मुझे बाय करना चाहिए, शुड आई बी कीपिंग दैट, और बेसिकली सीजनल वाइज मुझे रखना चाहिए, बिकॉज अगेन सीजन वाइज भी डिजीजेस होते हैं। ओके, जैसे फ्रूट्स का सीजन होता है वैसे हर जगह पे डिजीज का भी सीजन होता है, इन दैट बेसिस। तो क्या हम वहां पे कुछ सीजन वाइज पैटर्न फाइंड आउट करके हम इन्वेंटरी को मेंटेन कर सकते हैं क्या? यस, वहां भी कर सकते हो। अगेन जैसे अभी वॉलमार्ट है, मेगा मार्ट है, कहीं भी आप जाओ, मार्ट्स में, वॉलमार्ट्स वगैरह मार्ट्स में जाओ, वहां पे भी यूज किया जाता है, अगेन फॉर इन्वेंटरी मैनेजमेंट ओनली। सिर्फ दुकान भर, सिर्फ आपका मतलब मटेरियल इन्वेंटरी मैनेजमेंट करने के लिए नहीं, इट ऑल्सो हेल्प्स टू गेट डिटेल्स फ्रॉम लॉजिस्टिक वे, लॉजिस्टिक को मेंटेन करने के लिए भी जरूरी होता है। ओके, फॉर एग्जांपल इट्स कि कोई एक ए प्रोडक्ट है जो अभी खत्म हो चुका है ना, अब उसके लिए अगर आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं और आपको कंटिन्यू पूछ रहे हैं कि व्हेन दिस प्रोडक्ट विल बी कमिंग बैक, वी नीड दिस, वी आर वी आर रिक्वायरिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बट सिंस यू आर नॉट हैविंग प्रॉपर इन्वेंटरी मैनेजमेंट, क्या हुआ, आपको प्रोडक्ट ये जब आपने ऑर्डर दिया उसके बाद में एक मंथ उसे लगे कम से कम, क्योंकि आपका जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करने के लिए इट विल टेक अराउंड 1 मंथ। क्या आपको लगता है 1 मंथ के लिए कस्टमर रहेगा रेडी? वो कहीं और से लेगा, परचेस करेगा, उससे क्या होगा, आपका कस्टमर का जो कनेक्शन होता है, कस्टमर का जो भरोसा है वो टूटेगा। और टूटेगा तो छोड़ दो, आपने क्या किया है, आपने खुद ही उन्हें क्या किया है, दूसरे जगह से सामान लेने के लिए उनको फोर्स किया है, उनको दूसरा ऑप्शन आपने क्रिएट किया है, बिकॉज यू क्रिएटेड द नीड बट यू आर नॉट एबल टू फुलफिल दैट, सो दे हैव मूव्ड अदर फॉर द अदर ऑप्शंस। ओके, ये सब चीज हमें ध्यान रखना पड़ता है। सो इस तरह से एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एन नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं, ये चीजें हम एनालिसिस करते हैं हमारे पावर बीआई के थ्रू। ओके, सो बेसिकली क्या है, डेटा के ऊपर में एनालिसिस करना। नाउ वी डू वर्क ऑन हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल डेटा पे हम काम करते हैं। हिस्टोरिकल डेटा पे क्या करते हैं हम, वी डू डेटा प्री प्रोसेसिंग, वी डू डेटा प्री प्रोसेसिंग, दैट इज व्हाट वी डू ऑन हिस्टोरिकल डेटा, बिकॉज जो हिस्टोरिकल डेटा है वो हो चुका है, देयर इज नथिंग वी कैन डू। ओके, दैट इज बीन डन, दैट इज बीन स्टोर्ड, हमें क्या करना है, सिर्फ उसको डेटा प्री प्रोसेसिंग करके उसमें से क्या है, एटमोस्ट इंफॉर्मेशन और इनसाइट हमें निकालना होता है, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। ओके, अब उसके लिए क्या है, जो हमने स्टेप्स है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमें स्टेप्स वहां पे सब चेक करना होता है कि इज दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम ओवर देयर, अगर है तो क्या उसका लेट्स से उस पे क्या हमें रिजल्ट लेना, उस पे क्या हमें उसका रिट्रीवल लेना है। ओके, ऑल दोस विल बी देयर, ये सब चीजें हमें वहां पे देखना पड़ता है। सो दिस इज हाउ बीआई वर्क्स, एंड ऑब्वियसली आपके इनसाइट के थ्रू क्या होता है, आपको किसी भी कंपनी को डिसीजन निकालने के लिए, डिसीजन देने के लिए आप हेल्प कर रहे होते हो। ओके, दैट्स पर्टिकुलरली व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। So let me just delete this unwanted. Okay, let's keep it if required by. तो अभी हम पहले क्या करते हैं, समझते हैं कि पावर बीआई है क्या। I'm trying to join. I don't know, she might be there. Here we go. Now you should understand the difference between power. Okay, we'll go through one by one. Now first understand what Power BI is. Power BI is nothing but a Microsoft Power BI
इट्स अ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, ऑब्वियसली कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम इसलिए दिया जाता है ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन ना लगे, अरे यार क्या ये रिलायबल प्रोडक्ट है क्या, सिंस इट्स अ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट सो एवरीवन कैन रिलाई ऑन दैट। ओके, बेसिकली क्या है, ये इंटरैक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन के लिए हेल्प करता है ना। इंटरैक्टिव मतलब क्या, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ओके पावर बीआई में आता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से दिखता है, लेट मी इंट्रोड्यूस दैट आल्सो। Once you install that particular tool, वो हम करने वाले हैं, I'll show you how to do that and I will also guide you there. Okay, once you have that data or let's say that tool installed, वो आपको कुछ इस तरह से दिखता है, ये आपका डैशबोर्ड है, ओके ये आपका वेलकम डैशबोर्ड है, दिस इज कॉल्ड योर वेलकम डैशबोर्ड। ओके, ये वेलकम डैशबोर्ड है, जहाँ पे क्या है देखो, ये होम बटन होता है, होम ऑप्शन जो भी हम यहाँ पे हैं, और ओपन करने के लिए जो आपके रिसेंट फाइल से या कहीं पे सेव है वहां से आपको डेटा रिट्रीव करने के लिए ओपन ऑप्शन दिया जाता है। रिकमेंडेड में क्या है देखो, रिकमेंडेड में यहाँ पे आपको ब्लैंक करना है क्या, वन लेग डेटा है क्या, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन से आपको करना है। और रिकमेंडेड में यहाँ पे नीचे जब आते हो तो ये होता है दो ऑप्शन, रिसेंट में रिकमेंडेशन चाहिए या शेयर्ड विथ मी, किसी को आपने शेयर किया तो वो वाला। उसके पहले यहाँ पे क्या है देखो, सेलेक्ट डेटा सोर्सेस, ब्लैंक चाहिए क्या आपको, वन लेग डेटा हब चाहिए, एक्सेल वर्कबुक निकालना है, सीक्वल सर्वर से लेना है, लर्न विथ, जो भी ऑप्शन होता है इसमें मोर बहुत सारे ऑप्शन है, वी आर हैविंग 100+ डेटा सोर्सेस थ्रू विच यू कैन गेट दैट। सो रिकमेंडेशन में क्या है, यहाँ पे रिसेंट में जो आपने किया है वो डिटेल्स आते हैं, शेड किया है तो आप स्टार करके भी रख सकते हो, स्टार का भी आपको ऑप्शन आता है। सो यार डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस, ये जितने आपको नाम दिख रहे हैं यहाँ पे, आपको इनिशियल स्टेज में आपके फाइल में या फिर आपके टूल में ये नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर आपने किया है तो, बिकॉज आई हैव डन ऑन दिस सो इट इज शोइंग ओवर हियर, ओके otherwise it will be blank at initial stage. So from here you can directly click that file and it will get let's say accessible. Okay, साइन आउट करके है आपने यहाँ पे ऊपर देखना है, यहाँ पे दीपक भातलवंडी करके यहाँ पे मेरा नाम है, यहाँ पे ऐसे ही हमें क्या करना है, यहाँ पे साइन इन करना है। अगर आपको उससे साइन आउट करना है तो यहाँ पे साइन आउट के लिए ऑप्शन है, पहले हम साइन इन कैसे करते हैं वो देखेंगे एंड देन वी विल यूज साइन आउट। अगेन साइन आउट बेसिकली आपको सबको पता है, साइन आउट बाहर निकलने के लिए, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपको करके दिखाओ, इट्स वेरी लॉजिकल, एवरीबॉडी नो। ऑप्शंस एंड सेटिंग्स कभी हम यूज करते हैं ये भी आपको बताऊंगा। एंड अबाउट, अबाउट आपको बताता है कि आपके पावर बीआई के बारे में डिटेल्स, कौन सा वर्जन है, क्या डिटेल्स है, इट इज शोइंग लाइक दिस। ओके, so this is Power BI desktop which is again version 2.13 ये है, जो जनवरी 2025 अभी अपडेटेड है, ये वाला है। आपको भी मेरे ख्याल से यही आएगा, किसी किसी का शायद नवंबर हो यहाँ पे, बट जनवरी वुड बी द लेटेस्ट एंड इट कुड बी नवंबर ऑल्सो, पहले मेरा नवंबर का था। और ये आपके बाकी के डिटेल्स है। ओके, सो आपको अबाउट के बारे में यहाँ पे पता चल जाएगा। ओके, नाउ वंस यू, जैसे यहाँ पे है देखो, मैंने यहाँ पे कोई, इसको मैंने अभी एक मिनिमाइज कर दिया, तो पीछे जो, अब यहाँ पे आने के बाद में क्या है देखो, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ बैक, तो यहाँ पे जो उसका बैकग्राउंड है, जहाँ पे उसका होम पेज आ जाता है, ओके यहाँ पे जहाँ पे ये अनटाइटल्ड है, अनटाइटल्ड मतलब क्या है, ये फर्स्ट पेज जहाँ पे आपने कुछ भी वर्कआउट नहीं किया है, ये आपका जो पेन है, ये जो पेन दिख रहा है, कोई जो डॉटेड डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन है, ये बॉर्डर्स है, ये आपका क्या है, ये विजुअल पेन है। विजुअल पेन नहीं कहूंगा, लेट्स से दिस इज योर लेट्स से कैनवस, ओके दिस इज योर कैनवस। कैनवस मतलब क्या है, जहाँ पे आप करोगे, जहाँ पे आप क्रिएट करोगे, वेर यू विल क्रिएट योर विजुअलाइजेशन, दैट इज अ कैनवस। Canvas has some options. You can import data from Excel, you can import data from SQL, you can import data from, or you can create a blank table, or you can use this sample data from somewhere you want. You can have different options. Is this only options? No, there are lots of options. If you click on this option, you'll get this many number of options. Files, database, Microsoft Fabric, Power Platforms, Azure, Online, others. There are n number of options. Okay, I will explore this everything one by one. But here is the option. Get data from source. Here also is the same option over here. And if you go over file, you'll have that same option over here also. So if you click on there, it will take you in the same place. See over here, the same options are there. And if you click on this, get more data, same dialogs box will be opened over here for every time. Okay, it's not something different, but they are given different, let's say, options where you can click and you can utilize. Okay, so this is your canvas and this is how it looks at the first glance. This is your first page. In Excel, you must be knowing that there are different sheets through which we can access and through which we can work. Same way in Power BI, we are having pages. Instead of sheet in Excel, we are having pages over here. So anyhow, you can see that the overall UI means user interface. User interface means this is the face that you are looking, okay, and it's very user means the one we are used to it. Okay, user interface, so it's very friendly user face. It's not written over here,
It's friendly user face. So this UI which is in front of us is very much friendly. Why? Because we know Excel. कहीं ना कहीं तो हमने देखा ही है, कहीं ना कहीं हमने इसने यूज किया है. Okay, so Excel is having same kind of, or let's say Microsoft is having such kind of environment which is very much same. आप Word में जाओ, PowerPoint में जाओ, कहीं पे भी जाओ, you might have seen this same method. So if you look over here, there is this tab over here. Different tabs are available. Below there is this ribbon. This ribbon is there available, which is having different groups, and inside that we are having different options or different tools. At left side, we are having this 1, 2, 3, 4 views. What are those? How those can be accessed? I'll show you that also, but those are view. From here, we can get different data. Same goes over here also. Okay. This is your canvas. This is your canvas. The dotted line, this is your canvas. This is page where you can add multiple pages. Okay. And if you don't want, you can delete there also. This, at this point, we can see over here. Let me zoom it a bit over here. At left bottom, you'll see over here, this is a symbol like a desktop, a monitor, which is shown over here in this way, and it is having green underline over here. This means that at this particular point or at this particular time, you have selected the desktop view. You can use this for mobile view. The report that will generate or the report that will be created will be on desktop view. View means the resolution. The resolution of charts, the details that you will create, the charts will be based on the screen size of the resolution, isn't it? It will be 1280 or something like that. The resolution will be of more or like landscape. More or like a landscape type. Whereas if you look over mobile, you must have seen that it's a portrait, है ना? ये ऐसे लंबा होता है, portrait from up to down. Rather than desktop क्या होता है आपका ऐसे इस तरह से right to left. Okay, this is in portrait. तो मोबाइल में आओगे तो पोर्ट्रेट में मिलेगा आपको. ओके, दैट इज हाउ वी कैन. ओके, बिसाइड दैट आप राइट साइड में जब आओगे, सी देयर आर डिफरेंट पेन्स. ओके, रिमेंबर दिस इज योर फिल्टर पेन. एंड पेन मींस ये वाला पेन नहीं, ये दर्द वाला पेन है, ये हमें से कुछ नहीं करना है. दिस पेन, PANE, पेन. पेन मतलब क्या है? ये एक आपका क्या है? बॉर्डर साइड है. इस बॉर्डर में क्या है? डिफाइंड एक बॉर्डर है, उसके अंदर में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे. तो ये क्या है हमारे? ये पेन हो जाता है. ओके, दैट इज दिस पेन. फिल्टर पेन है. इसको मैं अभी एक्सपांड करता हूं. लेट मी एक्सपांड दिस. इस तरह से देखो, ये पेन आ गया ना, विथ डिफाइंड बॉर्डर. एंड डिफाइंड, ये देखो डिफाइंड बॉर्डर है. ये इस बॉर्डर के अंदर में ही जो भी चीजें हैं डिफाइंड आपके यहाँ पे डिटेल्स होते हैं. ओके, इसे इसलिए पेन कहते हैं. it will be everything which is available in filter will be on this particular pane only. इसी बॉर्डर के अंदर होगा, इसी बॉर्डर के अंदर. ये दूसरे बॉर्डर में जंप नहीं करेगा. Okay, that's why it's called pane. Okay, leaving that. PANE, not PAIN. Make sure you understand that and remember that. Again, we have another pane which is called build pane. अच्छा, build pane की जगह किसी के पास में visuals करके भी नाम होंगे. No problem with that. It is also called as visuals. Okay, तो यहाँ पे visuals pane भी होंगे. Okay, so same goes with that. We have again format pane. ये build के visuals के अंदर ही आता है. And again we have something called data pane. ये यहाँ पे ये जरूर ये दिखता नहीं है, बेसिकली ऐसा इस तरह से दिखता है. For every time, whenever you will see Power BI on a general perspective, you will always see these three pane by default over there. Filter, it is not called as build at initial, it is called visualization. I should not cross it. Let's say or, दोनों याद रखो, or build and data pane. Okay, so this three pane will always be there by default. You will see there. Build यूज किया जाता है आपको कौन सा डिफरेंट चार्ट्स है, उस चार्ट्स को यहाँ पे यूज करने के लिए. जो भी चार्ट्स है यहाँ पे, उनमें से कोई भी एक चार्ट आपको यहाँ पे यूज करने के लिए. फर्स्ट रो में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दिस आर ऑल बार चार्ट्स, कॉलम चार्ट्स. नेक्स्ट रो में देखोगे तो मोस्ट ऑफ देम आर लाइन चार्ट्स, कस्टम बार चार्ट एंड लाइन चार्ट. फिर बाद में डिफरेंट चार्ट्स आपके पास में, ऐसे हर एक रो में अलग अलग चार्ट्स को आपको एक्सेसिबल करके यहाँ पे रखा है. ओके, और ये तीन चीज क्या है? एलिप्स. दिस इज कॉल्ड एलिप्स.
दिस इज कॉल्ड एलिप्स, 3 डॉट्स, एलिप्स। ओके, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास और ऑप्शन क्रिएट हो जाएंगे, गेट मोर विजुअल्स। इसका मतलब क्या है, हमारे पास में जो ये डिफॉल्ट विजुअल्स है, इसके अलावा अगर मुझे कोई चाहिए तो मैं और भी यहाँ पे से डाउनलोड करके उसे सेव कर सकता हूँ। यस, वी कैन डू दैट ऑल्सो, बट फॉर दैट आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन इन करना होगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, आपको यहाँ पे साइन इन करके ऐसे साइन अप या साइन इन करके ऑप्शन दिया होगा, आपको वो कंफर्म करना है एंड देन वी विल गो दैट। उसके लिए आपको आपके पर्सनल ईमेल ऐसे वर्क नहीं होता है, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास में डोमेन स्पेसिफाइड आईडी रहना है कंपनी का, या डोमेन स्पेसिफाइड। अब आप बोलोगे सर हम तो किसी कंपनी में काम नहीं करते, या फिर हमारे पास तो नहीं है, तो हम क्या करें? डोंट वरी, उसके लिए भी सोल्यूशन है, मैं आपको भी बताऊंगा। जस्ट वॉच दिस, यू विल हैव दैट आल्सो। आई थिंक इंट्रोडक्शन के बेसिस में कुछ छूटा तो नहीं है। और पेन ये हो गया, ये पेन हो गया। हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके विजुअल्स को, यहाँ पे जो कैनवास है हमारा, इस कैनवास को बड़ा छोटा करने के लिए आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे। ओके, ये जो है पॉइंटर, ये ऐसे छोटा बड़ा है ना, परसेंटेज आप कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि बिकॉज वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट वैल्यू हियर, है ना, कि वो 70 है 80 है, बाय डिफॉल्ट कौन सा है, वी डोंट नो। आपको डिफॉल्ट देखना है तो 70% है। लेट मी जूम इट, देखो बाय डिफॉल्ट जो रहता है वो 70 है यहाँ पे। लेकिन अगर गलती से समझो मुझे नहीं याद रहा, कौन याद रखेगा उसे? ओके, सो लेट्स से इफ आई फॉरगॉट और मुझे से वापस से उसे उसी डिफॉल्ट वैल्यू में लेके आना है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन होता है फिट टू द पेज। ये क्या करता है, उसे बाय डिफॉल्ट लेके आ जाएगा, तो 70 में लेके आ जाएगा। एंड अंडरस्टैंड दैट whenever we are saying, or let's say whenever someone ask you to zoom, तो यहाँ पे आना है। अगर आपको कोई बोलेगा कि आपके विजुअल को बड़ा करे, आपके विजुअल को बड़ा कीजिए, फोकस कीजिए, डू नॉट यूज दिस। फोकस हैज अ डिफरेंट मीनिंग इन पावर बीआई, spotlight has a different meaning. Everything what we are talking over here, everything that we are speaking over here in means of let's say terms, जो हम टर्म्स यूज कर रहे हैं, जूम, जो हम टर्म यूज करेंगे फोकस, जो हम टर्म यूज करेंगे स्पॉटलाइट, ये सब चीजों का ना पावर बीआई में स्पेसिफिक मीनिंग है। ऐसे कुछ छोटे छोटे चीजें होती है, जब आपको हम बोलते हैं तो क्या होता है कि हम समझ जाते हैं कि इसको पावर बीआई पे कितना उन्होंने वर्कआउट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, अगर कोई मुझे कहता है कि मैंने एटलीस्ट 2 से 3 ईयर का एक्सपीरियंस किया है जिसमें मैंने पावर बीआई ने यूज किया, और मैं अगर उसे कहूंगा कि यस फोकस योर विजुअल, अगर वो यहाँ पे चला जाएगा जूम में और वो फोकस करेगा, ओके, थिंकिंग दैट आई वांट दिस, नो, वो समझ जाऊंगा कि उसको फोकस का ऑप्शन नहीं पता है। स्पॉटलाइट करके अगर वो फोकस करेगा तो उसे स्पॉटलाइट नहीं पता है। ओके, सो दिस मीन्स दैट ऑल्दो यू आर सेइंग बट यू आर नॉट नोइंग दोस टर्म्स, यू आर नॉट वर्कड ऑन दिस। ओके, इस तरह से हमें खुद को इस सिचुएशन में नहीं डालना है कि हमें वो टर्म्स पता ना चले। 100, देखो 100% टर्म्स सबके सब याद रहेंगे, मैं उसमें किसी को बिलीव भी नहीं करता, एंड आई डोंट इवन वांट दिस। एटलीस्ट 80% तो हम अचीव करना है और कर सकते हैं, दैट इज व्हाट आई थिंक। ओके, और ये हम करेंगे। नाउ सो दिस इज वेलकम पेज बेसिकली। ये आपको हमेशा डैशबोर्ड, आपको वेलकम पेज, डैशबोर्ड नहीं है, इट्स अ वेलकम, क्या कहेंगे, होम पेज है ये। आपका डैशबोर्ड होता है यहाँ पे, ये आपका होम पेज है। ओके, दिस इज योर होम पेज। इफ यू क्लिक ऑन दिस इंसर्ट, इंसर्ट का ऑप्शन यहाँ पे, मॉडलिंग है, यहाँ पे व्यू है, आपके बाकी डिटेल। ओके, दिस इज योर होम पेज हो गया। नाउ to install this Power BI, let me update you how you can do that. Okay, there are two methods. First of all, people who are having, let's say, a licensed Microsoft product and who are having those access, they can use their क्या कहते हैं उसे, गैलरी कहते हैं, स्टोर, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, या those people can use Microsoft Store टू डाउनलोड दिस पावर बीआई। आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाइए आपके, और आप वहां से उसे डायरेक्टली डाउनलोड करें। अच्छा, बोले कि कहाँ पे है, सो इफ यू लुक ओवर हियर, ये जो है ना माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, देखो यहाँ पे आइए, मेरा साइन इन है, मेरा लीगलाइज लाइसेंस है, तो कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा पावर बीआई, इस तरह से सर्च करूंगा तो ये पावर बीआई आपको अपडेट आ जाएगा। ओके, देखो पावर बीआई डेस्कटॉप, इट इज इंस्टॉल्ड ओवर हियर। if you haven't, you will be asked for its, let's say, for installing purpose, it will ask you। ओके, ये आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना, यहाँ पे इंस्टॉल कर देना।
And people who are not having this option, let me give you for them also. Now, what is the advantage over Power BI and what is advantage over website? See, अगर आप Power BI डेस्कटॉप से इंस्टॉल करते हो ना, तो जो भी अपडेट्स आते हैं ना, महीने 2 महीने में जो भी आपके अपडेट्स आते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको आपके माइक्रोसॉफ्ट में जाके वहां पे जो आपको पता चलेगा तब नहीं करना है, वो क्या करेगा, आपको ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा, क्योंकि स्टोर है, स्टोर में से ऐप अपने आप अपडेट होते हैं. Whereas people who are going to get that Power BI software from downloaded from there, you will be asked frequently to check it. Okay, आपको चेक करना होगा, फिर आएगा, यहाँ पे अपने आप होता जाएगा. ठीक है, दैट्स द ओनली डिफरेंस ओवर हियर. अदरवाइज पावर बीआई वहां का यहाँ का कोई अलग नहीं होता है, इट्स सेम ओनली. ओके, लेट मी क्लोज दिस वन. हाँ, उनके लिए क्या करना है, सो यू हैव टू गो ओवर हियर. आई थिंक मैंने कर रखा है यहाँ पे. आपको सर्च क्या करना है आपके ब्राउजर पे. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई. क्या आपको सिर्फ ये सर्च करना है, पावर बीआई डेस्कटॉप इंस्टॉलेशन. इतना ही कर दो, जिसे आपको मैं करके दिखाता हूँ अभी. मैं पे पे क्लिक करता हूँ, पावर बीआई इंस्टॉलेशन. देखो ये आ गया आपका, यहाँ पे देखो, डाउनलोड पावर बीआई डेस्कटॉप फॉर्म ऑफिशियल. क्लिक, यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन है अलग अलग, कोई भी आप सेलेक्ट कर दो, यहाँ पे लेके आएगा आपको. ये देखो यहाँ पे लेके आ गया. ओके, यहाँ पे आ गया. ये इंग्लिश है आपका लैंग्वेज, ऑब्वियसली ये डिफॉल्ट है, इसे रहने देना है. यहाँ पे आपको करना है डाउनलोड. डाउनलोड करने के बाद देखो आपको एक ऑप्शन है यहाँ पे, सी यू हैव दिस 2 ऑप्शंस. इज इट ऑफ डॉट 64.ex और इज इट ऑफ डॉट ऑन ex. अब आप बोलोगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है. नाउ पीपल हु डोंट नो और डू नॉट हैव दैट लेट्स से इंफॉर्मेशन कि आपका 32 बिट है, 32 वाला है या 64 वाला है डॉट exe वाला. ओके, 60 ये exe वाला, ये exe वाला. तो आप क्या करो, आप इसको यूज करो, इसको डायरेक्टली. अगर पता नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, अगर आपको पता है कि डॉट 64 exe तो यूज करो. अब आप बोलोगे कहाँ से हम इसे इंफॉर्मेशन निकाले, बहुत सिंपल है. देखो, आप आपके सिस्टम में यहाँ पे आइए, सेटिंग्स में आ जाइए. इट्स नॉट दैट मच ऑफ लेट्स से प्रॉब्लमेटिक और एनी ह्यूज कंसेप्ट ओवर देयर. अकाउंट में आके आप देखोगे आपके अबाउट, जस्ट अ सेकंड, गलत ऑप्शन क्लिक हो गया. यहाँ पे आना है. ओके, ये यहाँ पे देखो आपकी डिटेल्स, यहाँ पे अबाउट, व्हाट अबाउट होम, जहां तक मुझे तो यही पे था. सिस्टम, हाँ ठीक है, सिस्टम. ओह, सिस्टम में नॉट ओवर हियर. अबाउट में, सिस्टम में आ जाइए. सिस्टम में अबाउट है, या दैट इज. ओके, देखो यहाँ पे आपको बता देता है, इट्स 64 बेस्ड प्रोसेसर डॉट जो है 64 बेस्ड प्रोसेसर. ओके, 64 प्रोसेसर. तो मेरा 64 वाला, तो मैं 64 करूंगा. अगर आपको यहाँ पे 32 है तो 32 वाला कीजिए. लेकिन अगर नहीं लगता है, नहीं पता है वो, तो बेसिकली क्या करना है आपको, 32 वाला, जो 32 वाला है इसके लिए ये है, 64 के लिए ये है. ओके, सो इस तरह से आप उसे चेंज कर सकते हो. दोनों लेने की जरूरत नहीं है. एक ही कोई सिलेक्ट करो, 64 वाला, नहीं तो फिर 32 वाला. दोनों मत करना. इससे क्या होगा, आपका जो साइज है ना डिफरेंशिएट करेगा. सो मेक श्योर यू चूज दैट करेक्टली. वंस यू चूज दैट, क्लिक कर दो, आपके डाउनलोड में वो शुरू हो जाएगा, सिस्टम शुरू हो जाएगा. ओके, वंस डाउनलोडेड, अब उसके लिए कौन सा प्रोसेस मुझे फॉलो करना है, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, उसके लिए भी यहाँ पे देखो सब डिटेल पावर बीआई ने बताए हैं. पावर बीआई इंस्टॉलेशन प्रोसेस, लेट्स से इंस्टॉलेशन स्टेप्स, यहाँ पे है मेरे, ये देखना. ओके, मैं इसको क्या करता हूँ, आपको शेयर कर देता हूँ. जस्ट कॉपी दिस वन, यहाँ पे आता हूँ मैं, ताकि इनकेस अगर आपको याद रहे ना रहे, तो जस्ट शेयर दिस. इस तरह से ऐड कर दिया है. ओके, ये हो गया. देखो यहाँ पे पूरे स्टेप्स दिए आपको है, कैसे करना है, क्या करना है. ओके, इस तरह से आ जाता है डिटेल्स. उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप में कौन सा सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे इंग्लिश है, ये सब चीजें देखो ऐसे. ओके, ये बेसिकली ये चीज आ जाएगी. अच्छा, ये जो आपको पेज दिख रहा है ना, वेलकम पेज, ये डैशबोर्ड जो है, वेलकम डैशबोर्ड, ये पुराना वाला. इट्स वे लेट्स से ओल्डर, लेट्स से लास्ट कब देखा था मैंने इसे, अक्टूबर, अक्टूबर भी नहीं, probably अगस्त, जुलाई अगस्त के टाइम में देखा था मैंने, लास्ट ईयर के 2024 के. इट वाज देयर, बट आफ्टर दैट इट हैज बीन चेंज. जैसे आपको दिखाया ना मैंने ये वाला, ये इस तरह से हो गया. ओके, एक्सेल की तरह, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट की तरह. अदरवाइज इट वाज लाइक दिस ओनली. और जो रिक्वायरमेंट है देखो, मिनिमम आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि सिस्टम में मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चीज़ों को हमें देखना चाहिए, क्या लेना चाहिए. ओके, सी
मेमोरी एटलीस्ट 2 GB अवेलेबल, 4 GB इज मोर रिकमेंडेड मिनिमम। अगेन मिनिमम 4 GB यहाँ पे बोलते हैं, बट 4 GB के साथ में देखोगे तो अब बाकी का देखो सीपीयू वगैरह जो गीगाहर्ट्ज वगैरह, इट्स वेरी हाई। ओके, और लेट्स से कि ये इतना होना चाहिए। बेसिकली आपको मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आपके पास सिस्टम अवेलेबल है अच्छा, तो मिनिमम इस पे मत जाइए, मिनिमम 12 रखिएगा, 12 GB। ओके, और 16 GB होता है तो बेस्ट है, मिनिमम 12 GB रैम रखिएगा। अच्छा, ऐसा क्यों? देखो ये सिर्फ पावर बीआई के लिए बात कर रहे हैं 4 GB, लेकिन आप इसे यूज करोगे तो यू विल फाइंड दैट 4 GB इज इट्स वे स्लोअर, बहुत स्लो चलता है। ओके, 12 GB रखोगे तो अभी के लिए ही नहीं, कल जाके हम जब पावर बीआई के साथ में उसे जब हम पाइथन से कनेक्ट करेंगे, जब हम उसे माई सीक्वल से हम डेटा कनेक्ट करेंगे माई सीक्वल से, देन हम उसे फिर बाद में कभी अगर आपको ऐसा लगा कि आर से कनेक्टिविटी करके करना है उसे, फिर आपको मतलब बेसिकली सेल्फ फर्स्ट कहीं कैसे भी आपको कनेक्टिविटी करना है, वहां से डेटा लेके आना है, तो होगा क्या, पाइथन साइमल्टेनियसली वर्कआउट काम करेगा। आपको डेटा प्रोसेसिंग यहाँ पे क्या करना है, आपको डेटा यहाँ पे मतलब डेटा में पाइथन में आप डेटा प्री प्रोसेसिंग करोगे, और वहां से फाइल आप फॉरवर्ड पावर वे में करोगे, तो क्या है, साइमल्टेनियसली वर्क चल रहा है ना। साइमल्टेनियसली आपके क्या होता है, सिस्टम में टैब में यहाँ पे भी अलग एक फाइल चल रहा होता है, यहाँ पे फाइल, जैसे अभी यहाँ पे देखो सेटिंग भी यहाँ पे, पावर बीआई भी है, पावर पॉइंट भी है ना, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें चल रहे होते हैं। तो 4 GB यहाँ पे देखोगे तो बहुत स्लो हो जाएगा, इट विल कंज्यूम अराउंड 90% ऑफ योर रैम, इट विल श्योरली कंज्यूम, विच आई शुड नॉट रिकमेंड दैट। ओके, ये रिकमेंडेड नहीं होता है, सिस्टम उससे बहुत प्रॉब्लम देगा। सो एटलीस्ट 12 GB का आप रैम जरूर देखिए इफ पॉसिबल। ओके, अगेन देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स अवेलेबल ओवर हियर, ये चीजों को जरूर ध्यान रखना। और बाकी डिटेल्स यहाँ पे हैं सब, तो इसको फॉलो करते करते सिंपल है, नेक्स्ट 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 करते जाना है, इसमें कुछ अलग से आपको डिटेल्स नहीं। ओके, जस्ट हैव टू फॉलो दैट नेक्स्ट, ये आप तो कर देना। हम्म, अब आते हैं हम यहाँ पे हमारे बेसिक इंटरेक्टिव के बारे में आपको पता था। इंटरेक्टिव मतलब जैसे मैं आपको कह रहा था कि इंटरेक्टिव में फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी एक पुराने वाले को सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स से प्रोक्योरमेंट पावर बीआई, यहाँ पे अपना भी एक फाइल हमें क्रिएट करना होगा, पावर बीआई फेब्रुआरी ना, फेब्रुआरी करके। हाँ चलो वही करते हैं ना, नहीं इसमें डेटा नहीं, ठीक, जस्ट वन सेकंड, आपको वो भी साथ में लेके आऊंगा मैं, डेटा कैसे लेना है कैसे करना है, डेटा बस अभी के लिए कीजिए मत, बस ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पास भी सैंपल सुपर स्टोर करके डेटा है, आपको मैंने दिया है, वी हैव टू गेट दैट ओवर हियर आल्सो, नहीं ये तो हम वो भी करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से डेटा आएगा, ऐसा ये नहीं आएगा, फोरकास्टिंग चल रहा है यहाँ पे, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ये इस तरह से डेटा आएगा। ओके, अब इस डेटा में क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये देखना है कि जैसे यहाँ पे आप डेटा देख सकते हो कि ये कुछ डिटेल्स है जो फोन के बारे में, टेबल्स फर्नीचर्स चेयर्स कुछ प्रोडक्ट्स है जो मार्केट में सेल होते हैं, उसके बारे में बता रहा है हमें। इफ आई क्लिक ऑन दिस फोन्स, देखो सिर्फ फोन के बारे में मुझे हाईलाइट ऐप इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है, टेक्नोलॉजी के अंदर में है वो, आ, उसका टोटल सेल्स कितना है पता चल जाता है। ओके, फिर उसका टोटल सब कैटेगरी में कहाँ डिटेल से पता चल जाता है, ये कैटेगरी ही दोनों कैटेगरी वाइज है। ओके, किस तरह से कितना क्या है उसका पता चलता है, मतलब क्या है बेसिकली, मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ इस चार्ट के साथ में, मैं क्लिक कर सकता हूँ, इंटरेक्ट कर सकता हूँ। कल जाके अगर मुझे लगा कि मुझे इसमें से इंफॉर्मेशन कुछ और चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इस चीज को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ यहाँ पे, सेम ही है वैसे तो। मैं इसमें क्या करता हूँ, एक ऐड करता हूँ स्लाइसर, और लेट्स से अगर मुझे देखो कैटेगरी में टेक्नोलॉजी, मुझे सिर्फ टेक्नोलॉजी के ही प्रोडक्ट्स चाहिए, फोन नहीं चाहिए, टेक्नोलॉजी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसका चाहिए, मैं क्लिक करूंगा, देखो सबके सब टेक्नोलॉजी की डिटेल्स आ जाएंगे। मतलब क्या है, मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ ना मेरे चार्ट के साथ में, बातचीत तो नहीं, ओके बातचीत नहीं कहूंगा मैं, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ उसके साथ में इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मतलब मेरे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल जो है चाहिए मुझे, मैं उसको बता रहा हूँ, वो समझ रहा है और उसके हिसाब से मुझे चार्ट डिटेल्स सीक आउट करके दे रहा है, ये होता है इंटरेक्शन। ये अगर मैं पीडीएफ फॉर्मेट में कर दूंगा तो होगा क्या, पॉसिबल नहीं होगा, तो इसी को कहते हैं इंटरैक्टिव डेटा, डेटा डैशबोर्ड, बेसिकली डैशबोर्ड भी नहीं कहूंगा, ये तो रिपोर्ट ही है, बट इंटरैक्टिव विजुअल्स के साथ में हमारे पास में आता है। ओके, रिमेंबर दिस, और ये हम करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट, मैं इतना करके छोड़ नहीं रहा हूँ, वी आर गोइंग टू डू दिस एवरी पार्ट ओवर हियर, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरैक्टिव। सिर्फ इतना इंटरैक्टिव है क्या, नहीं है, अगर आपको लगता है इससे भी ज्यादा, तो क्यू एंड ए करके भी आपके पास में ऑप्शन होता है, लेट मी शो यू दैट आल्सो, क्वेश्चन एंड आंसर करके, स्लाइड क्यू एन ए, ये क्यू एन ए क्या है, देखो ये एआई बेस्ड है, ये एआई के थ्रू हेल्प होता है, एनएलपी,
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर करके है, वो हेल्प करता है, एंड इट ऑल्सो LLM करके है, लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल करके, वो सब कंबाइन करके, जैसे अभी ये देखो आपको कुछ रिकमेंड करके दे रहा है, टॉप स्टेट बाय सम ऑफ सेल्स, थोड़ा मैं इसको एक्सटेंड करता है, ये खुद ब खुद दे रहा है, क्या मैंने पूछा इसे? नहीं, उसने खुद ब खुद बेस्ड ऑन दिस फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस कैसे होते हैं उसने खुद ब खुद क्रिएट करके दिया। मुझे पूछना है, मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ और यहाँ पे मैं सेलेक्ट भी कर सकता हूँ, सेलेक्ट कर दिया और इसे कर दिया गो भाई, चलो बता दो। थैंक यू लोग। अच्छा, मैप मैप नहीं चाहिए मुझे, स्टेट बाय नहीं करता, इट्स कैटेगरी बाय करता हूँ, क्योंकि स्टेट बाय तो आ जाएगा, सो आई जस्ट से कैटेगरी बाय, कैटेगरी बाय टैक्स, दैट वुड बी, देखो ये आ गया वैल्यू, इंस्टेंटली यहाँ पे आ गया, सम ऑफ, इतना सम ऑफ सेल्स है टोटल आपके कैटेगरी में, टोटल कैटेगरी में। ओके, इस तरह से हम उसे ब्रेक करके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आपने क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है, आपको डेक्स या फिर आपको बेसिकली वो BI टूल है, आपको आंसर ला के देगा। और फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो किसी, इसको मैं क्लोज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि किसी चार्ट के ऊपर का मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहिए मतलब क्या है, वो खुद मुझे नरेट करके दे, मुझे बताए कि क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है मुझे, इवन आई कैन सी बट स्टिल नरेट में विद दैट। राइट क्लिक कीजिए, देखो आपको यहाँ पे ऑप्शन होता है समराइज, इस पे क्लिक कर दीजिए, ये देखो ऑप्शन आपके पास में, देखो क्रिएट करके दे रहा है रिव्यू आपको, सी इट सेज इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दिया उसने। ओके, आई जस्ट कंट्रोल 8 सिलेक्ट करता हूँ, इसे थोड़ा हाईलाइट करता हूँ बड़े अक्षरों में ताकि मैं इसे पढ़ सकूं, रिक्वायर्ड, थोड़ा इसे मैं इसे ठीक करता हूँ। क्या बताते हैं, देखो टेक्नोलॉजी इन सब कैटेगरी, टेक्नोलॉजी कहाँ पे आता है ये आपको पता भी चल गया, देखो टेक्नोलॉजी ये सब कैटेगरी में आता है, जहाँ टेक्नोलॉजी इन सब कैटेगरी, फोन, जो फोन की टेक्नोलॉजी में, इन सब कैटेगरी फोन्स में आप देखोगे, विच इज मेकिंग 14.37% ऑफ सम सेल्स, जो टोटल सेल है, जो टोटल सेल इसमें कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है सिर्फ फोन, 14.37% ऑफ कंट्रीब्यूशन इज डूइंग ओवर हियर। देखो, क्या आपको यहाँ पे परसेंटेज पता चल रहा था? नहीं पता चल रहा था, बट क्या किया BI ने आपको परसेंटेज, एक इंसाइट दे दिया आपको, इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दिया, इस तरह से आप वो इन्फॉर्मेशन भी नरेट करके उसमें से समराइज करके डिटेल्स निकाल सकते हो। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग दैट वी कैन डू, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरैक्टिव डैशबोर्ड। इंटरैक्टिव डैशबोर्ड, इंटरैक्टिव रिपोर्ट, इंटरैक्टिव आपका रिपोर्ट होता है यहाँ पे। ओके, so that is why it is interactive. Let me close this one. Okay, with this now again आपको BI का इंटेलिजेंस का पता है, so I don't have to get that, why Power BI ये भी पता है। हाँ, जो भी चीजें बैकग्राउंड में चल रही, जैसे मैंने कहा कि हम, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे तो डेटा नहीं है, चलो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक नया पेज ओपन करता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से देखो इस टेबल में से, ये आपको टेबल में देने वाला हूँ, इस टेबल में से मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक कैटेगरी उठाता हूँ, वैल्यू पहले सेल्स, ये उठाता हूँ, देखो यहाँ पे डाल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, ओके, आई एम जस्ट पिकिंग अ ड्राई, छोड़ दिया, ये मैंने छोड़ दिया। उसे कैसे पता चला कि ये भाई मुझे इस तरह का विजुअल क्रिएट करके देना चाहिए, मुझे कार्ड करके एक बता दो कि हाँ मुझे एक समराइज वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, कार्ड करके दे दिया आपको। पावर BI क्या करता है ना, खुद ब खुद आपको चीजें विजुअलाइज कराने के लिए, आपको डिटेल्स शो करने के लिए खुद ब खुद इनिशिएट करता है। ओके, खुद ब खुद क्या करता है, कुछ चीजें प्रोवाइड करता है, जैसे अभी देखो ये तो दे दिया मैंने, अब मैं क्या करता हूँ, सी इस वैल्यू को ना मुझे इसे ब्रेक करता हूँ कैटेगरी बेस, देखो मैं उठाता हूँ यहाँ पे कैटेगरी, मैंने क्या किया, यहाँ से कैटेगरी उठा, यहाँ पे डाल दिया, पुट कर, देखो उसने खुद ब खुद क्या किया, एक चार्ट सेलेक्ट किया, बार चार्ट, और आपको ये दे दिया। वो कॉलम भी कर सकता था, वो सब कुछ कर सकता था, पर यहाँ पे क्या किया, बेस्ड ऑन इट्स इंटेलिजेंस उसने क्या किया ना, बेस्ड ऑन इट इंटेलिजेंस मतलब क्या है, क्या कोई बैठा है वहां पे चेक करने के लिए? नो, बिकॉज ऑफ पावर विजुअल। पावर विजुअल मतलब क्या है, यहाँ पे आप यहाँ पे आओगे ना PPT में, यहाँ पे देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, हाँ ठीक है, पावर व्यू यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, कहीं पावर व्यू रह गया क्या? ओके ठीक है, एक और है यहाँ पे, पावर व्यू। ओके, पावर व्यू क्या है,
जैसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पावर है, वैसे पावर व्यू एक है जो स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल है आपके विजुअलाइजेशन क्रिएट करने के लिए। जैसे अभी मैप के बारे में बताता हूँ, वहां पे लिखा है तो मैप दिखाता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पे डिटेल्स है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ दिस डिटेल लेट्स से मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको कैटेगरी को हटाता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ स्टेट 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 वाइज यहाँ पे पुट कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ ये IRGC। अभी जस्ट गिव मी अ मिनट। देखो यहाँ पे लोड हो रहा है एट दिस पॉइंट। देखो आपको, अच्छा अब आप बोलोगे अच्छा ये तो विजुअल का एक पार्ट है ना। हाँ विजुअल का ही पार्ट है, मगर विजुअल के अलावा उस विजुअल में पावर मैप, जैसे पावर विजुअल है, पावर व्यू है, वैसे क्या है पावर मैप करके भी एक है पावर, जो क्या करता है यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। सिंस यू हैव यूज्ड स्टेट, दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर कैटेगरी, ये कैटेगरी नहीं है, ये क्या है, ये आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के रिलेटेड में डिटेल्स है। दिस इज योर कंट्री, इजंट इट, कंट्री स्टेट, ये क्या है प्रोविजन, ये क्या है एक पर्टिकुलर मैप के डिटेल्स होते हैं, तो वो डिटेल्स है। इट्स नॉट समथिंग कैटेगरी, फोन मोबाइल ऐसे कैटेगरी थोड़ी है ये क्या है आपका कैटेगरी बेस्ड, ये आपके मैप है, लैंगिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिटेल्स उसमें होते हैं। ओके पर्टिकुलर नेम की चीजें, वो नाम है उसका, एक मीनिंग है। सो वो चीजों को क्या है आपका पावर मैप। जब आप बात करते हो मैपिंग के इसमें, तो पावर मैप खुद ब खुद एक्टिवेट होता है, किसमें होता है लेकिन पावर विजुअल्स में। तो इस ये जो विजुअल है इसके अंदर में पावर मैप, क्यों आपने यूज किया है स्टेट को, स्टेट निकाल दो ये एक्टिवेट नहीं रहेगा, फिर ये आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, सीधा सादा विजुअल आपको क्रिएट करके देगा। ये तो ये क्या है, ये चीजें जो है इंटरेक्शंस खुद ब खुद जो करके देता है, फिर आप आपके बेसिस आप अगर आप सिलेक्ट करोगे तो वो भी करेगा, बट एनी हाउ बाय इटसेल्फ आल्सो ये क्या है रिस्पॉन्सिबल होते हैं विजुअल्स क्रिएट करने के लिए। पावर मैप रिस्पॉन्सिबल होता है पर्टिकुलर मैपिंग करने के लिए बेस्ड ऑन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, और जो भी विदाउट मैप के भी विजुअल्स होते हैं वो विजुअल्स को क्रिएट करने के लिए पावर व्यू करके होता है। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पावर्स which are working in background, आप नहीं देख सकते हो बट इन बैकग्राउंड those are working very hard, और let's say they are working in very interactive way, आपके रिक्वायर के हिसाब से खुद को अडेप्ट करके चलते हैं। ओके those are called components, those are called components। ओके सो यहाँ पे वो नहीं है, बट अगेन लेट मी शो यू। ये देखो पावर व्यू which is responsible for Power Vision, a data visualization technology that lets you to create interactive charts, graph, maps and other visuals. Okay, वहां पे नहीं है but remember कि वो भी इसमें से एक पार्ट का हिस्सा है। Okay, so those are the components. Again, components over here. तो ये ध्यान रखना है हमें। तो ऐसे कौन से components है, या पूछा जाता है इंटरव्यू में, make sure you understand this and to remember this. Power Q&A जो हमने देखा, पावर Q&A क्या है, यूजिंग NLP नेचुरल लैंग्वेज। ओके NLP नेचुरल लैंग्वेज डेटा एक्सप्लोरेशन विद फीचर्स, जो आपके इनपुट जैसे आपने दिया है, क्वेश्चंस आप लिखोगे टाइप करते हो, उस टाइप के बेसिस में वो वर्ड्स को समझ के आपको क्या करता है आंसर देने की प्रोवाइड करता है। दिस इज अगेन विद रिलेटेड टू AI। ओके ना, आपको शायद ये भी लग रहा होगा कि हमारा पावर BI जो है इसका नाम पावर ही क्यों दिया है, व्हाई नॉट एक्सट्रीम, व्हाई नॉट सुपर, व्हाई नॉट ऑसम मैप्स, व्हाई नॉट ऑसम BI, व्हाई नॉट लेट्स से विजुअलाइजेशन मैप, ऐसे कुछ ऐसे क्यों नहीं किया, BI करके क्यों नहीं किया, पावर पावर। इसका रीजन ये देखो, आप जितने भी कंपोनेंट्स आप देखते हो ना, हर एक का नाम पावर है, हर एक का नाम पावर है, हर एक का नाम पावर है। इससे होगा क्या, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है देखो, व्हाई द नेम इज बीन गिवन। सी SaaS करके एक टर्म होता है। ओके इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एज ये टर्म हमेशा ध्यान रखना। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मतलब क्या है, वंस आई इंस्टॉल एनी टूल और एनी लेट्स से software in my system, I don't have to install, add in, or let's say get support from any other softwares. ओके जैसे आप एक्सेल में देखोगे, एक्सेल में क्या था पहले ना, वहां पे पावर पिवोट, पावर क्वेरी, ये चीजें नहीं थी। इसके से होता क्या था कि बहुत सारे उसमें ना कॉम्प्लिकेशंस और बहुत लिमिटेशंस थे पावर एक्सेल को। बट सिंस दे हैव अपडेटेड दोस, अब क्या हो गया पावर एक्सेल्स, जैसे आपने एक्सेल में ऐड किया है पावर्स को, तो आपका एफिशिएंटली वर्क कर रहा है एक्सेल भी। कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, और सर्विसेज आपने ऐड करते गए ना।
वैसे पावर बीआई आपको बाहर से करना नहीं है, उसके पास में ऑलरेडी इतने सारे कंपोनेंट्स है कि वो आपके सर्विसेज खुद ब खुद कर देता है। क्या करना है आपको, सिस्टम में लेना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, इट विल एक्ट एज SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी थर्ड पार्टी। ओके, इसलिए उसको सॉफ्टवेयर सर्विस कहते हैं। अच्छा, वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज कौन से हैं? एवरी नेम इज स्टार्टिंग विद पावर ओनली, दैट्स व्हाई योर कंपोनेंट और योर टूल इज आल्सो कॉल्ड एज पावर प्रोडक्ट ओनली। ये जितने भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है माइक्रोसॉफ्ट के, पावर क्यूएनए, पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर सर्विसेज, पावर मोबाइल, पावर गेटवे, पावर क्वेरी, पावर, ये सब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है माइक्रोसॉफ्ट के। उन्होंने क्या किया है? पावर बीआई में इनकॉर्पोरेट किया है, तो उनको क्या है? कंटिन्यू पावर के नाम से यूज किया है। ओके, सो इसलिए उसका नाम पावर बीआई, रिमेंबर दैट, एंड दैट इज कॉल्ड एज SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस टूल। ओके, how it works, its architecture, it's a workflow, how it works. This simply works in this way. It first connect to the data source, जो भी डेटा सोर्स है आपको उससे कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई भी हो सकता है डेटा सोर्स है, देखो ये एक्सेल का हो सकता है, आपका सेल्स फोर्स हो सकता है, कई शेयर पॉइंट्स हो सकता है, एजूर क्लाउड से हो सकता है, CSV फाइल, फ्लैट फाइल, कहीं से भी हो सकता है। उससे क्या क्या आपने कनेक्ट किया? आपके पावर बीआई सर्विसेज को। पावर बीआई सर्विसेज अगेन आप ऑनलाइन भी कनेक्ट कर सकते हो या आप आपके पावर बीआई डेस्कटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हो। इफ यू आर यूजिंग पावर बीआई डेस्कटॉप, इट विल बी कनेक्टिंग, बिकॉज इफ यू वांट टू पब्लिश दिस यू हैव टू गो थ्रू गेटवेज। गेटवेज मतलब क्या है? एक टेबल है, उस टेबल में कुछ कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है जो रोल वाइज और क्रेडेंशियल वाइज डेटा अपने आप फिल्टर होना चाहिए, है ना? डेटा क्या होना चाहिए? अपने फिल्टर होकर जाना चाहिए आगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेल्स वाला डेटा है तो वो सेल्स डिपार्टमेंट में ही जाए। अगर कोई डेटा लेट्स से अकाउंट्स का है तो सेल्स को क्या करना है? इट शुड गो टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट ओनली। R&D का है तो R&D में ही जाए। तो क्या है, जब डेटा आप शेयर करते हो बेस्ड ऑन रोल और बेस्ड ऑन प्रॉपर फिल्ट्रेशन, एडवांस फिल्टर कहते हैं उसे, एडवांस फिल्ट्रेशन, उतना डेटा उसी को पर्टिकुलर जाना चाहिए। इसको कहते हैं RLS, रो लेवल सिक्योरिटी। ये आपको लगा के फिर यूज करना पड़ता है। ओके, नाउ एक्सेस प्रॉपर मिलने के बाद में आप उसे टैप मतलब मोबाइल के फॉर्मेट में आगे शेयर कीजिए, जहां पे आपका लेआउट कुछ इस तरह से मूव होगा, रादर देन लेफ्ट एंड राइट, इट विल मूविंग ऑन अप एंड डाउन। और डेस्कटॉप पे कीजिए तो यू कैन हैव दिस ऑप्शन। ओके, इस तरह से आप लेफ्ट एंड राइट उसे टू एंड फोर कर सकते हैं। इन दैट वे यू कैन हैव दैट। तो इस तरह से आपका टोटल वर्कआउट होता है। कौन से फ्लो में होता है? देखो, फर्स्ट यू कनेक्ट टू डेटा सोर्स, ट्रांसफॉर्म द डेटा फॉर एनालिसिस। ट्रांसफॉर्म डेटा, यहाँ पे ये जो है ना ट्रांसफॉर्म डेटा फॉर एनालिसिस का पार्ट देखोगे तो ये बेसिकली ETL के बारे में बता रहा है। ETL, E over here is nothing but extract the data, and then transform over here. Transform over here is nothing but data pre-processing. This is requiring for data pre-processing. And then once you have data pre-processed, which is clean data, use it for your visualizations, creating charts and that. And then once you have report everything, please make sure to create a dashboard and collaborate it to give insights to your stakeholder ताकि decisions ले सके. This is how flow goes on. Okay, till now, is there anything or any query, guys? सर स्टेक होल्डर कौन होता है एग्जैक्टली, मतलब क्या उसका रोल? Okay. ना यहाँ पे आप स्टेक होल्डर की बात करोगे तो कभी कभी क्या होता है, जैसे एज एन आपका जो रोल है बीआई का, बीआई क्या करता है, जो भी रिपोर्ट इनसाइट्स होते हैं ना वो डायरेक्टली क्लाइंट को कभी कभी देता है, क्लाइंट को। तो तो क्लाइंट क्या है? स्टेक होल्डर। बेसिकली वो क्या करेगा? डिसीजन लेगा। वो क्या है? आपके जो भी एनालिसिस के बेसिस में वो आपका बेसिकली क्या है कि डिसीजन जो भी लेगा। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर, और ऐसे केस में कि अगर आप डायरेक्ट क्लाइंट को दे रहे हो, तो अगर आप आपके टीम लीडर को, टीएल कर देता हूं मैं, टीएल को दे रहे हो या मैनेजर को दे रहे हो, तो you have shared this data and then they will share to your client या फिर जो भी उनका रिक्वायरमेंट। बेसिकली देखोगे स्टार्टिंग में तो आपको अभी जैसे 2-3 साल का भी एक एक्सपीरियंस, फ्रेशर भी आप देते हो या कैसे देते हो, डिपेंड्स ऑन दैट। अगर आप एक्सपीरियंस के देते हो तो हाँ, टीएल को डायरेक्ट दे के फिर आप डायरेक्ट जा सकते हो। अदरवाइज आपको क्या होगा, आपको पहले एज एन पावर बीआई एसोसिएट करके लिया जाता है, फिर उसके बाद में आपको पावर बीआई कंसल्टेंट के बेसिस में प्रमोट किए थे, फिर बाद में आपको डेवलपर करके कहा जाता है। सो अगर आप एसोसिएट के बेसिस में, तो आपको जो भी रहेगा आप कंसल्टेंट को रिपोर्ट करोगे, कंसल्टेंट से फिर आप डेवलपर के यहाँ ऐसे आगे आगे जाओगे। सो डिपेंड्स ऑन कैसे आपका रोल कहाँ पे जाते हैं, एंड दैट वे यू विल फिल्टर आउट द वैल्यूज। ओके, तो स्टेक होल्डर बेसिकली क्या है? आपका एंड यूजर, आपके जो एंड यूजर जिसको आपको सबमिट करना है वो होता है आपका स्टेक होल्डर।
Okay, is it clear? Yes. Okay. Okay, any other queries till now? People who are listening, people who are having a जो भी पार्ट अभी तक कंप्लीट हुआ है उसमें कोई भी पूछ सकते अभी हम इसमें साइन इन कैसे कर सकते हैं पूरा? हो। आप सब लोगों को डाउनलोड हो गया? गाइस डाउनलोड हो गया क्या सबका? किसी को डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं। हाँ सर। ओके अगर सबको डाउनलोड हो चुका है, अगेन देखो अभी एट इनिशियल स्टेज ना आपको साइन इन करने का यहाँ पे कोई भी इशू नहीं, कोई भी कंसर्न नहीं, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके जब हम पब्लिश करेंगे हमारा रिपोर्ट क्रिएट करके जब हम पब्लिश करेंगे तब मैं बताऊंगा उसके लिए साइन इन कैसे करना है। ओके बिकॉज एट दिस मोमेंट फॉर क्रिएटिंग दोज रिपोर्ट्स फॉर वर्किंग ऑन दिस चार्ट्स वी डू नॉट हैव टू साइन इन, आपको कुछ नहीं करना है। जब हम चार्ट पे वर्कआउट करने के बाद में दो चीजों पे जब मैं आऊंगा, अगेन एक बार कर देंगे तो साइन इन कोई जरूरी नहीं है। जब हमें एक्स्ट्रा या फिर हमें लेट्स से चार्ट्स विच आर अवेलेबल हो, विजुअल्स विच आर अवेलेबल हो हियर, इफ यू वांट मोर देन दोज उस समय पे आपको एक लगेगा। दूसरा आपको पब्लिश करने के लिए जो भी आपने रिपोर्ट बनाया आपको पब्लिश करना है पावर बेस सर्विस पे तो वहां पे लगेगा। ओके सो व्हेन वी विल गेट ओवर देयर आई विल श्योरली टेल यू एंड दैट विल बी डन ओवर देयर। टिल दैट इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर। ओके other than that any query? Okay. सर Okay, वो how many- फोकस स्पॉटलाइट का आप बाद में बताने वाले हो ना? हाँ अभी हम डेटा सेट लेंगे ना, एक डेटा सेट लेंगे उसमें हम विजुअल सब करेंगे और फिर उसमें हम यूज करेंगे। ओके अभी तो Okay, जो ये क्या आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है ठीक है। ओके सबका अगर इंस्टॉलेशन हो चुका है, सबके पास में है क्या पावर बीआई ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है? अगर है तो ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई ऐसा मतलब उसमें इशू नहीं है। यस सर। हाउ मेनी ऑफ यू डोंट हैव पावर बीआई इंस्टॉल? या कुछ बोलते भी नहीं आप लोग। यस सर इंस्टॉल्ड है। ठीक है जिनके पास में नहीं है क्या वो हाथ ऊपर हाँ ना कुछ कह सकते हैं क्या? ठीक है जिनके पास में है वो ओके, जिनके पास में नहीं है मोहम्मद बिलाल अहमद। ओके सर इंस्टॉल हो रहा है। ओके फाइन वेरी गुड। सेम सब इंस्टॉल हो रहा है सब। ओके फाइन ठीक है अभी के लिए मैं क्या करता हूँ आपको, पहले तो हम क्या करेंगे डेटा सेट में आपको ना वेब से, ओके वेब मतलब क्या है, ऑनलाइन डेटा कैसे फेच कर सकते हैं जो कि सेमी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है फिर भी हम उसे यूज करके कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ईजी रहेगा, देयर नॉट बी एनी प्रॉब्लम विद दैट। पहले हम वो देखते हैं फिर बाद में आपको कल में सैंपल सुपर स्टोर डेटा है बड़ा डेटा है उसको भी हम फेच करेंगे। सो पे अटेंशन, okay understand this how we can do it, it's very simple, not having any issue with that. Okay again I have to go through these steps but ठीक है कंपोनेंट पता हो गया, ये हो गया है ETL प्रोसेस, चलो आपको पता हो जाएगा कोई इशू नहीं है। ठीक है मैं कर भी कंटिन्यू ठीक है। और भी मैं तो देखो ये जो फर्स्ट पेज है आपको मैंने क्या किया यहाँ पे फाइल में था, यहाँ पे मैंने ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक किया और ब्लैंक रिपोर्ट में क्या हो गया मेरा ऐसे ब्लैंक डिटेल आ गया। अब आप बोलोगे ये कैसे पता चलेगा हमें ब्लैंक है कि नहीं? सी आप अगर ऑब्जर्व करोगे ना तो आपके पावर बीआई में लेफ्ट साइड कॉर्नर में देखो ये अनटाइटल्ड पावर बीआई डेस्कटॉप विच इज अनटाइटल्ड ये लिखा था। इसका मीनिंग क्या है? इट इज नॉट येट सेव्ड। ओके ये पहला आपका फॉर्मेट है जो अभी तक सेव नहीं किया है इसलिए इसलिए अनटाइटल्ड है। तो क्या होगा आप सेव पे क्लिक करोगे तो इट विल आस्क यू वेयर यू वांट टू सेव इट। सेव पे क्लिक कीजिए, सेव करने के बाद में ये ऑप्शन आएगा। ओके अभी के लिए मैं क्या सेव करता हूँ, जैसे हमारा बैच है ना बैच की डिटेल में देता हूँ। ओके लेट्स से PBI_फेब बैच, PBI फेब ऐसे कर देता हूँ। अगेन इसको भी मैं 225 कर देता हूँ ताकि स्पेसिफिक रहे थोड़ा सा। 2025 लाइक दिस, ठीक है हमारा बैच का नाम है ये रहेगा। कहाँ पे हो रहा है सेव देखो, UC यूजर एटम वन ड्राइव डॉक्यूमेंट। नहीं मुझे यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे करूँगा पावर बीआई में, पावर बीआई के। ओके सो आई विल सेव दैट फोल्डर में। देखो ये हो गया। अब यहाँ पे होने के बाद में देखो जैसे मैं फाइल में आता हूँ ना
8 आवर्स, अच्छा मैंने क्लोज नहीं किया क्या, ठीक है। जैसे आप बाद में क्लोज करोगे ना, एक बार क्लोज करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है मैं आपको करके दिखाता हूँ। Let me close this one. इसे ओपन करता हूँ डेस्कटॉप। ये देखो PBI अंडरस्कोर फेब अंडरस्कोर 2025। जैसे आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे ना, जो जो रिसेंट है, ओके 1 मिनट को बता रहा है, जैसे रिसेंट है वो चीज आपको वहाँ पे फर्स्ट दिखेगी। आपको उसको चेंज करना है, ओपन ऐसे अल्टरनेट कर सकते हो, द लॉन्गेस्ट और लेट्स से द ओल्डेस्ट वन एंड द रिसेंट वन। ये चीज आप दोनों आप फिल्टर फिल्टर करने के बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। ऑन दिस डिवाइस कहाँ पे से आपने किया है, उसका नाम भी आप शेयर कर सकते हो, अगर लोकेशन वाइज चेक करना है कर सकते हो, नेम वाइज डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन जो है। ओके बस इस पे क्लिक करना है, आपका वहाँ पे चेंजेस कर सकते हो इस तरह से। ओके नाउ आई ऑलरेडी हैव, सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस। अब मुझे क्या करना है, देखो ओपन नया नहीं करना है, जो है रिसेंटली वर्कआउट कर चुका हूं मैं, जो मेरा पुराना है उस पर क्लिक करना है। वेट कीजिए, ओके बिकॉज इट विल हैव, ये हो गया, देखो ओवरराइट हो गया। जो पावर बीआई था पहले वाला आपका, जो वहां पे जो ब्लैंक था, क्या हो गया अनटाइटल, वहां पे वो ओवरराइट करके अभी आपका जो रिसेंट है वो आ गया। ओके जो आपने वर्कआउट किया था प्रीवियस बेसिस पे। अब ये जो गेट डेटा है, ये जो गेट डेटा है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर extracting the data, for gathering the data from different sources. गेट डेटा पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो वेब ऑप्शन है, ओके यहाँ पे क्या है देखो वेब ऑप्शन है। गेट डेटा के अंदर में नीचे नीचे आओगे, वेब करके ऑप्शन, उस पर क्लिक करो। ये आपको पूछता है कि भाई यूआरएल दो मुझे, प्लीज प्रोवाइड मी यूआरएल, आई विल फेच द डेटा। अब यूआरएल देने के लिए क्या करना है हमें, विल गो ओवर हियर। अब यहाँ पे मैं क्या टाइप करता हूँ देखो, IMDb टॉप 250 मूवीज, इसका मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डिटेल्स। सो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस डेटा इज नॉट एट ऑल इन स्ट्रक्चर्ड मैनर। किसी भी तरह से स्ट्रक्चर्ड डेटा में ये फॉर्मेटेड नहीं है, कोई भी टैबुलर फॉर्मेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सेमी स्ट्रक्चर्ड भी कह सकते हैं, ओके बिकॉज देयर आर अ पर्टिकुलर पैटर्न ओवर हियर बट नॉट इन स्ट्रक्चर्ड, इट इज सेमी स्ट्रक्चर। हर एक पिक्चर का मूवी का क्या है यहाँ पे, एक फोटो है, उसका टाइटल नेम है, ईयर है, आवर्स है, रेटिंग कौन सा दिया है उसके, मतलब कौन सा रेटेड है, R रेटेड है वो, 9.3 उसका रेटिंग्स है, कितने लोगों ने दिया है, ऐसा कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, विच इज सेमी स्ट्रक्चर। व्हाट आई विल डू, आई विल गेट ओवर हियर। यहाँ पे क्या करूंगा, इस HTTPS को कॉपी करता हूँ, ऐसे कंट्रोल है कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने ले लिया। और भी में आना है, यहाँ पे आके क्या करना है, सिर्फ कंट्रोल V पेस्ट कर दिया और कर दो ओके। वेट करना है, कुछ नहीं करना है, सब प्रॉपर है, कॉपी सब सही हुआ है, गलत कुछ नहीं हुआ है, कुछ छूटा नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। इफ इट कैन रीड, ये आपको ऐसे नेविगेटर ला के देगा, नेविगेटर, दिस इज कॉल्ड नेविगेटर पेन, नेविगेटर डायलॉग बॉक्स। ओके नेविगेटर आ जाएगा। डिस्प्ले ऑप्शंस में यहाँ पे जो ये रीड कर रहा है, इट इज नाउ ट्राइंग टू कनेक्ट दैट लिंक, दैट पर्टिकुलर HTTPS विद दिस डिटेल्स। देखो आ गया। वहां पे कैसा था आपका व्यू, वेब व्यू पे देखो इस तरह से था, ये क्या है आपका वेब व्यू, कुछ इस तरह से था। अब आपका टेबल व्यू कैसे हो गया, अब टेबल व्यू में टेबल क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई सेलेक्ट नहीं किया है। सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू चेक, ऐसे करने सेलेक्ट यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। ओके यू डोंट हैव टू चेक मार्क हो गया, सिंपली सेलेक्ट कीजिए, ऐसे उस पर क्लिक करोगे तो भी आ जाएगा, यू डोंट हैव टू चेक मार्क हो गया। ओके ऐसे कर दो तो भी आपका व्यू आ जाएगा। वंस यू कंफर्म कि हाँ यही डिटेल्स है, देन चेक इट ओवर हियर, बिकॉज टेबल 2 में इंफॉर्मेशन ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी इंपॉर्टेंट, ये सब इतना ही है। ये टेबल का मुझे इंफॉर्मेशन, जहाँ पे टाइटल डिटेल्स है इंफॉर्मेशन है। अब क्या करूंगा मैं, सिंपली यहाँ पे लोड करूंगा। अच्छा लोड कब करते हैं हम, जैसे अभी आपके डेटा में आपको पता है कि आपने जो डेटा फेच करना है यहाँ से, जो हमने वेब से लिया है, जो टेबल यहाँ पे दिख रहा है, मुझे क्या करना है, इसे डायरेक्टली यूज करना है हमारे विजुअलाइजेशन के लिए। डायरेक्टली विजुअलाइजेशन मतलब क्या, डायरेक्टली चार्ट्स बनाने हैं, डायरेक्टली इनसाइट्स मुझे गैदर करने हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस तरह का सिचुएशन है तो हम क्या करते हैं, वी डायरेक्टली डू फॉर द लोड ऑप्शन। तो कब नहीं करना है, अगर ये क्वेश्चन है, सी आप देखोगे कॉलम का टाइटल सही नहीं है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, टाइटल आने चाहिए, टेबल के आपकी जो मूवी के नाम आने चाहिए। प्रॉब्लम दूसरा क्या है, यहाँ पे सीरियल नंबर और मूवी का नाम दोनों साथ में कंबाइन हो चुका है। यहाँ पे कॉलम में देखो आप देख सकते हो कि कितने लोगों ने रेटिंग्स दी है, तो ब्रैकेट्स में पैरेंथेसिस में आ रहा है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, और दूसरा 3 मिलियंस है, लेकिन 3 मिलियन और साथ में जब 3M लिख दोगे तो इंस्टेड ऑफ नंबर ये कंसिडर क्या करेगा, डेटा टाइप टेक्स्ट कंसिडर करेगा। तो ऐसे कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। तो शुड आई गो फॉर लोड, नहीं, आई शुड गो फॉर ट्रांसफॉर्म द डेटा, अगर इस तरह से प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देते हैं तो।
एट दिस सिनारियो वी आर नॉट गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द डेटा बिकॉज अभी हमें जानना है कि पहले लोड करके क्या होता है एंड देन वी विल गो फॉर फर्दर। तो अभी के लिए क्या करना है आपको, सिर्फ आपको लोड करना है, नथिंग एल्स। ओके, अभी क्या करना है आपको, डायरेक्टली लोड पे ही ऑप्शन पे क्लिक करना है। गलत है बट अभी के लिए वही आपको फॉलो करना है। ओके, सो क्या करना है, यहाँ पे लोड पे क्लिक कर दो, क्योंकि हमें भी लोड कैसा होता है डेटा वो समझना है। ओके, बाकी का तो हम जरूर करेंगे, विल डू दैट। देखो टेबल 1 लोड हो रहा है, इवेलुएट हो रहा है, चीजें इवेलुएटिंग क्या हो रहा है मैं आपको वही बताऊंगा, क्या इवेलुएट कर रहा है वो। ओके, वंस इट इज देयर जस्ट वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ओके, जिसका मेरा इंटरनेट स्पीड थोड़ा शायद स्लो है, आई थिंक टुडे इट्स नॉट हैविंग दैट मच ऑफ गुड इंटरनेट स्पीड, बट अगेन इट इज वर्किंग। सो ये देखो टेबल 1 करके नाम जो हमने सिलेक्ट किया था ना, टेबल का नाम एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगा आपको, यहाँ पे दिखेगा टेबल 1 जो नाम था टेबल का आ चुका है। ये डिटेल्स है, इसके अंदर में क्या क्या है देखो, मैं इसको क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ, ड्रॉप डाउन है, इसे ओपन करता हूँ। सी दिस आर द कॉलम्स दैट इज देयर। अब प्रॉब्लम क्या है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 इतने सारे कॉलम तो है, लेकिन कौन सा कॉलम क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई एम रियली अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट। तो ऐसे केस में इट्स बेटर कि मैं इसे रीनेम करूं, पर रीनेम कैसे करूं, पता कैसे चले कि कौन सा कॉलम क्या है। अगर मुझे इस डेटा को देखना है तो ऐसे यहां पे तो मैं देख ही नहीं सकता। क्यों, राइट नाउ आई एम इन विजुअल व्यू। ये कहां पे हूं मैं, विजुअल व्यू पे हूं। इसको आपका जो ये कर्सर यहाँ पे से लेके आओगे ना, देखो इसको मैं कर्सर यहाँ पे लेके आता हूँ, देखो ये क्या है, देखो रिपोर्ट व्यू, नॉट विजुअल व्यू, सॉरी रिपोर्ट व्यू। क्या है ये, रिपोर्ट व्यू। थोड़ा जूम करता हूँ, देखो कर्सर यहाँ पे लेके आता हूँ, देखो ये रिपोर्ट व्यू में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट ही दिखता है। ओके, टेबल नहीं दिखता है। नीचे आपके पास में है टेबल व्यू, यस मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो आपके टेबल के अंदर में क्या क्या डिटेल्स है, यहाँ पे टेबल व्यू, उस टेबल का पूरा व्यू यहाँ पे पता चल जाता है। कौन से कॉलम में क्या डिटेल है, कौन से कॉलम का क्या रेफरेंस है, यू कैन हैव एवरीथिंग ओवर हियर। इन दिस वे वी कैन सिंपली डाउनलोड द डेटा, वी कैन व्यू टेबल which is inside, and it's very easy. Simply we get converted into semi structure to structure within a few minutes of interval. Is it clear? Yes, sir. यस Okay. Now today we will stop over here for this point. Tomorrow the data that we have retrieved, इसमें जो जो problems है, जो जो issue है, okay, और जो बाकी यहाँ पे theory बाकी है, इससे हम आगे continue करेंगे. Okay. Okay. If there is any query, you can stay. Otherwise, yeah, you can leave. Thank you. Thank you for the presence. सर रिकॉर्डेड तो इसका सेशन मिल जाएगा ना? Yes, 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 my friend. देखो Okay. रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है। अगेन यहाँ पे देखो ये रिकॉर्डिंग है ना, यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग बोलता है क्योंकि स्टार्ट हो चुका है। सो इसका लिंक भी मैं आपको शेयर करूंगा कि अभी मेरे पास खुद नहीं आया है, जैसे मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, जितने भी लोग यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, आपके व्हाट्सएप में जब आप जाते हो ना, तो ये जो आपका ग्रुप है अभी जो हमने क्रिएट किया है, कभी भी लिंक के लिए ये जो आपको मैं शेयर करता हूँ ना लिंक, ये वाला जो अभी के लिए क्या है, इस पे भरोसा मत करना, इस पे रिलाय मत रहना। भरोसा मत करना मतलब ये कोई धोखेबाज नहीं है, बट रिलाइंग ऑन दिस विल नॉट बी ओके, बिकॉज इन केस अगर कभी चेंज हो गया तो ये हमेशा ध्यान रखो, ये मैं हमेशा अपडेट करूंगा। ओके, वट एवर रिलेवेंट लिंक विल बी देयर, आई विल अपडेट इट। ओके, तो मेक श्योर कि इसे फॉलो करना है, कुछ नहीं करना है। देखो शो मोर यहाँ पे क्लिक करोगे आपको लिंक पे डायरेक्ट लेके आ जाएगा। वैसे यहाँ पे क्या करूंगा मैं, उसी के नीचे अभी के लिए सिर्फ एक लिंक है, सेशन लिंक, यहाँ पे मैं एक और ऐड कर दूंगा रिकॉर्डेड लिंक करके, आप उसके वहां से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, थैंक यू फॉर द प्रेजेंस। कुछ भी क्वेरी तो बताओ, अदरवाइज कल मिलते हैं। सर फ्राइडे को कुछ सेशन हुआ था क्या? नहीं नहीं, फ्राइडे को मैं नहीं था ना, एक्चुअली वो बोलता मैंने मेडिकल के रीजन के समय बाहर गया था, दैट्स व्हाई। साइनिंग का बता देना। श्योर सर, मैं आपको बताऊंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, या गाइस आप जा सकते हो, अगर कुछ क्वेरी तो यू कैन लीव। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन लीव। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आपको हाय बैठना सर। है। हाँ बोलिए। हेलो सर, बोलिए अगर बोलिए। हम माइक्रोसॉफ्ट से जब डाउनलोड करेंगे ये जो पावर बीआई का सॉफ्टवेयर, जैसे नॉर्मल करते हैं गूगल पे, तो वो तो हो चुका है मेरा, बट वो माइक्रोसॉफ्ट जो साइड में आप दिखाए थे ना, तो उसके थ्रू डाउनलोड करेंगे तो उसका क्या स्टेप्स रहेगा? नहीं नहीं, देखो उसका सिर्फ एडवांटेज ये है कि जो भी अपडेट्स आते हैं, ओके, वो ऑटोमेटिकली आपके अपडेट हो जाते हैं, सिस्टम अपडेट के साथ में हो जाता है बट वो आपको। कर सकते हैं ना हम? हाँ, नो प्रॉब्लम।
कर सकते हैं, पर कोई भी एक ही करना, login दोनों मत करना। ओके फाइन सर थैंक यू हाँ